Good morning, dear children. Welcome to EVS class. So, dear children, as you can see the setup, today we are going to start our new chapter, chapter number 3, plants. So, let's start the chapter with the question, can you imagine the world without plants? I know you would say that how can we imagine the world without plants? Because no plants means no oxygen, no food, no fruits, and no flowers. So let's start with the parts of the plant. As you can see, this plant. So we'll start with the root system. You must know that plant is divided into two systems. One is the root system and the another one is the shoot system, which you can see above the ground. So here you can see this plant. These are roots. These are the stems, right? Stem is there. Branching, so much of branching is there. Remember children, I have taken a weed, the unwanted plant. So nobody will root out a plant just for sake of studies. So I have taken out a weed. So here you can see these are the leaves, which all of you know because we are doing it from previous classes. So here you can see this fruit also, right? This is the fruit of this plant. And here I have got one flower. Can you see that? So this is the flower of the plant. So all these are the parts of plants. So one by one we'll take the parts and we'll study about their functions. So let's start with the first part, that is roots. Dear children, roots are one of the most important parts of the प्लांट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट स्टेज अंडर द ग्राउंड और इसका मेन फंक्शन, इफ़ यू विल सी द रूट्स हेयर, यू विल सी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. सो दीज आर द रूट हेयर, right? These are root hair, and what they do, they absorb water and nutrients from the plant. तो roots का सबसे मेन जो फंक्शन है, the main function of root is to absorb the nutrients and water from the soil. So we can see what is absorption, how do they absorb. For that I'll show you with this experiment. I have taken some ink in this ball, right, and it is a tissue paper. So I'll just show you how the absorption in the plant takes place, right? Can you see? Just see how this tissue paper is absorbing this ink. In the same way, these roots, they have lot of root hair here, right? Here they have lots of root hair. और इन root hair का क्या काम है? एक तो एंकरिंग का, ये प्लांट को अच्छे से सॉइल में एंकर करके रखते हैं. सेकेंडली दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. यू कैन सी दैट ये पहले वाटर था, राइट? इसमें मैंने थोड़ी सी इंक डाली है. That is the colored ink. In the same way I have mixed ink with it. तो जो हमारी soil होती है उसमें भी बहुत से nutrients होते हैं which are already mixed in the soil. तो जब वो water में भी mix हो जाते हैं, soil में भी mix होते हैं, तो ये roots क्या है, उसको absorb करती है with the nutrients. So water plus nutrients, they go from the roots. So let's talk about the types of roots. In this chapter, in this topic of fruits, we will study about the types of fruits. So here, dear children, I have taken a weed. Here you see the shape of this root. You can see a very long root coming from here, from the beginning to here, right? And it has these side roots which are known as lateral roots. इनको हम क्या कहते हैं? Side roots, lateral roots. Lateral roots, lateral का मतलब ही क्या होता है? आपकी side. We have two types of roots. तो उसके लिए हम देखेंगे. One is tap root, right? We have tap root, and the other one is fibrous root. So here children, just see, we will see what does this mean. Tap का मतलब क्या होता है और fibrous का मतलब क्या होता है. सो टैप रूट में आपकी एक मेन स्टेम, मेन रूट आती है, राइट? जैसे ये आपकी यहाँ पे सॉइल के नीचे का पार्ट है ये रूट, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगी, जिन प्लांट्स के नीचे ये एक मेन रूट जाती है और फिर साइड रूट्स जाती हैं, उसे हम कहते हैं टैप रूट. सो दिस इज़ अ वीड एंड यहाँ पे इस प्लांट की क्या है, टैप रूट है. In the same way, we have some other
plants which have fibrous root. तो यहाँ पे dear children fibrous का मतलब ही क्या होता है? धागे. क्या मतलब होता है इसका? धागे, जो धागों की तरह दिखती है हमें. बहुत सारी रूट्स होती हैं, वो नीचे से निकलती हैं. So here I'm going to show you a plant which is, this is marigold, right? Marigold has fibrous roots. यहाँ पे आप देखो, ये जो है इसकी कोई मेन रूट नहीं है, राइट? इसकी मेन रूट नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये धागों की तरह कितना फैला हुआ है. कैन यू सी दैट, राइट? तो आपके ग्रासेस हैं, मेज़ है, वीट है, वो उन सब में क्या हो जाती है? फाइब्रस रूट. तो ये सभी रूट्स जो हैं यहाँ से स्टेम के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ये पूरी फैल जाती हैं. और ये इतनी, आप अगर इस प्लांट को, आप टैप रूट को आप उखाड़ेंगे, यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, राइट? क्योंकि ये दैट गोज डीप इनसाइड द सॉइल. लेकिन आप फाइब्रस रूट को आप उखाड़ना चाहेंगे तो ये बहुत जल्दी से उखड़ जाता है. आई हैव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट विद मी, एंड दिस इज़ अ ग्रास. तो जितने भी आपके ग्रास लाइक प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उन प्लांट्स की जो रूट्स हैं दे आर फाइब्रस रूट्स, राइट? सो फाइब्रस रूट में आप क्या पढ़ोगे? दे स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेम, जस्ट बिलो द स्टेम दे स्टार्ट. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रूट्स ऑल्सो. अब इन रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं? विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ दीज रूट्स नाउ. फर्स्ट फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रूट्स अटैच द प्लांट टू द सॉइल. ये तीनों ही रूट्स आप देख रहे हैं, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट, और ये आपकी टैप रूट है. तो इनका फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ रूट्स इज़ टू अटैच द सॉइल टू द ग्राउंड. तो ये कैसे फर्मली, मैंने आपको बोला, ये बिल्कुल फर्मली आपको ये ग्राउंड के साथ अटैच करके रखती है प्लांट को, और इसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है. ऑन द अदर साइड, ये जो फाइब्रस रूट है ये काफ़ी एरिया कवर करती हैं सॉइल का, और ये सॉइल इरोजन में भी उसको प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करती हैं. आपने देखा होगा, व्हेन यू गो टू द ग्राउंड में, जब आप प्लेग्राउंड में खेलते हैं स्कूल में, बारिश हो तो कीचड़ में अगर आप जाओगे तो आप पूरे भर जाते हो, आपके पैर मिट्टी से भर जाएंगे, मिट्टी वहाँ से बह जाएगी. लेकिन सेम आप अगर ग्रास पे चल रहे होगे, यू विल फील दैट आपको वहाँ पे ज़्यादा मड नहीं दिखेगा. वाई? बिकॉज दीज रूट्स एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर. वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मिट्टी को ज़्यादा गीला होने नहीं देते. नेक्स्ट फंक्शन इज़ रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ये जो रूट हेयर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रूट हेयर, ये रूट्स, ये क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. नेक्स्ट इज रूट्स होल्ड द सॉइल. होल्ड भी करके रखती हैं. अभी मैंने आपको सॉइल इरोजन बताया. व्हाट इज़ सॉइल इरोजन? वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन. सॉइल का कटाव, जब बारिश होती है, सॉइल का बह जाना, उसे हम सॉइल इरोजन करते हैं. एंड सॉइल इरोजन इज़ नॉट गुड, राइट? सो इसको ये रोकते हैं, प्रिवेंट करती हैं. ये रूट्स उसको रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं, होल्ड करके रखती हैं सॉइल को. नेक्स्ट वी हैव रूट स्टोर फूड. बहुत सी रूट्स ऐसी हैं बच्चे जो हम खाते हैं, एंड दे स्टोर फूड, and those roots are called edible roots. So I have some examples of roots with me here. As season is not for these roots, I have observed when I was finding tap roots around my house, so I didn't find, because mostly जो tap roots होती हैं आपकी winter में होती हैं. So here I have radish with me, right? Radish is a tap root. Here you can see this tap root, राइट? ये जो टैप रूट है आपकी, ये क्या हो गई है? बड़ी हो गई है, बल्ज हो गई है यहाँ पे ये. तो दिस इज़ बिकॉज इट इज़ स्टोरिंग फूड. तो इसका प्लांट का पूरा स्टोर कहाँ पे हो रहा है? ये खाना यहाँ स्टोर हो रहा है, इस टैप रूट में हो रहा है, और हम इस टैप रूट को खाते हैं. दिस इज़ रेडिश एंड दिस इज़ एन एडिबल रूट. सो कैरेट के अलावा बेटा आप लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हो एडिबल रूट्स के. दैट इज़ योर, सॉरी, दिस इज़ रेडिश. कैरेट हो गया आपका, टर्निप हो गया, देन बीट रूट हो गई. ये सब आपके एडिबल रूट्स हैं जो आप डेली अपने वहाँ पे डेली रूटीन में वी टेक देम एज वेजिटेबल्स. So next we'll take stem, right? The next part which we are going to take is the stem. So here you can see again
In this plant, you can see the stem. This is a portion of stem. And now if we talk about the functions of the stem provides support to the plant above the ground. अब यहाँ पे तो ऐसे लगा होगा ये, ठीक है, रूट्स अंदर हैं, लेकिन प्लांट को ऊपर कौन खड़ा कर रहा है, कौन उसे सपोर्ट दे रहा है, तो दैट इज़ योर स्टेम. अब स्टेम के ऊपर कितना कुछ होता है, सारे आपके मोस्टली जो प्लांट के पार्ट्स हैं दे आर ऑन द स्टेम. सो स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. सेकेंडली जो रूट आपकी जो भी एब्जॉर्ब करती है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुई मिनरल्स की, वाटर की, सो हु इज़ ट्रांसपोर्टिंग दैट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज़ द स्टेम. तो यहाँ पे स्टेम जो है, स्टेम के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि इस पूरे वाटर को, मिनरल्स को दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाता है, आपकी लीव्स तक, फ्लावर्स तक, बर्ड्स तक, फ्रूट तक. तो सभी पार्ट्स को कौन देता है, ये पानी और न्यूट्रिएंट्स, द स्टेम प्रोवाइड्स देम. तो ऐसे बहुत सी स्टेम्स हैं बेटे जो हम खाते हैं, लाइक रूट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट देयर आर सो मेनी रूट्स विच स्टोर फूड एंड वी ईट दोज रूट्स. सेम वे कुछ स्टेम्स होती हैं जिन्हें हम खाते हैं. एग्जाम्पल्स हैं उसके, शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन है. देन वी हैव पोटैटो. यू कैन सी दिस पोटैटो इज़ ऑल्सो अ स्टेम, राइट. रिमेंबर ये आपका स्टेम है, आपकी स्टेम है जो आप खाते हो. तो स्टेम क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये फूल जाती है, राइट. तो इसको हम खाते हैं. सो पोटैटो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम, राइट. सो अब इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस जिंजर, जिंजर भी क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम जो हम खाते हैं. ये मेरे पास यम है जिसे हम अरबी कहते हैं, इसे भी हम खाते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ stem underground. These all are underground stem. Next if we see here, you see ये भी आपको दिख रहा है, right. What is this? This is garlic. ये क्या है, garlic है, ये भी एक underground stem है. So these are the examples of stem. underground stems हैं जिन्हें हम खाते हैं. These are edible stem जिनको हम खाते हैं. The next topic in STEM is classification of plants. So आप छोटे होते बेटा आप पढ़ चुके हो कि स्टेम की जैसे कितनी पतली है स्टेम और उसकी किस तरह की है वो स्टेम, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ईदर इट इज़ अ हर्ब, इट इज़ अ क्लाइंबर, श्रब है, ट्री है. तो इसकी स्टेम की थिकनेस के, थिननेस के, उसकी स्ट्रेंथ कितना वो सपोर्ट कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी क्लासिफिकेशन. सो ये आपका होमवर्क है. आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, श्रब्स और ट्रीज़ के बारे में पढ़ के आएंगे. एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो लीव्स, उसको थोड़ा सा आप रीड करेंगे. एंड ऑन मंडे आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ लीव्स. थैंक यू डियर चिल्ड्रन, थैंक यू.